respected dignitaries on the dais, Honorable Shri Nand Kumar ji, जो अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में उसी प्रकार समर्पित कर रहे हैं जैसे यह दीप जल रहा है। हम लोग बचपन से गीत सुनते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बने तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है। ऑनरेबल Shri Nani Gopal Mohanty ji, who and his entire family has dedicated to the cause of entire Northeast region and their authority in that, and Shri Hemant Kumar ji, who is a registrar of this university, and all the respected brothers and sisters present in this hall. First of all, I feel elated when we come to this land on which the first ray of sun falls on our great country India. जो सूर्य की पहली किरण का जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर का यह क्षेत्र, वहां पर आकर एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है. And it is not only that physically, first the ray of sun starts from here. Do you remember that today we are in the 75 years of India's independence, which has been called Amrit Kal by our Honorable Prime Minister, that now we have to look from 75 years to when we will complete the 100 years of independence in 2047. India has to reach a situation which is its legitimate due. Means सोने की चिड़िया भी होंगे और जगत गुरु भी होंगे. But we got independence on 15th of August 1947, but this land is blessed that the first flag of independent India was hoisted on 14th of April 1944 in Manipur and Kohima by Azad Hind Fauj led by Netaji Subhash Chandra Bose. And moreover, as Nand Kumar ji was saying, decolonization of minds requires, because if we talk about the first independent government of the country, then definitely a reference of the exile government led by Netaji Subhash Chandra Bose, which was formed in 1943, in October 1943, should have the mention, because that was the first independent government of India. Subsequently, we formed the government in 1947. And with due respect to everybody, I do not want to demean anybody, but the government was not formed on 15th of August 47. It was formed on 2nd of September 1946 under the Cabinet Mission Plan. And the swearing in was done by Lord Mountbatten. And showing allegiance to whom? To British Crown. Most of the people have somehow slipped up this fact, that the British Parliament has decided that India will get independent not on 15th of August 47. The due date was 30th of June 1948. They have preponed it. That's a different story, why they preponed it. And you must be remembering that even after 47, Mountbatten remained the Viceroy of India till 30th of June 1948. Why? Because the predetermined date was 30th of June 1948, then why it was preponed? On this 75th year of independence, we must know the fact that one of the prominent reasons was, after the Second World War, when the trial of soldiers of Indian National Army, Azad Hind Fauj, was going in Delhi, then the then British Commander-in-Chief, his name was Claude McKinley. He has written a letter to then Viceroy on 24th of November 1945 that the Indian soldiers of the British Army are having such type of nationalist ambition building up, and they are in a very much strong reaction on the proceedings which is going against the INA soldiers, that
We cannot rely on them. Their loyalty to British Crown has been severely damaged by Subhash Chandra Bose INA. He has written on 24th of November 1945, and in January 1946 the cabinet mission plan was approved. Then he writes a second letter on 12th of February 1946 that the information chief of the armed forces of the British forces, he says, now the information which I am getting, it is showing now they cannot be relied upon even for some few days. हम चंद दिनों के लिए भी उन पर यकीन नहीं कर सकते हैं. और फिर एक गोपनीय केबल भेजा गया टू ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स कि वो अपनी फैमिली को एज अर्ली एज पॉसिबल बॉम्बे और कराची पहुंचाएं, बट गुपचुप तरीके से, सो दैट इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनका इवैक्यूएशन तेजी के साथ हो सके. 12 फरवरी को लेटर लिखते हैं और 18 फरवरी को इंडियन नेवी में एक अपराइजिंग होती है. एंड विद इन फ्यू डेज फ्रॉम बॉम्बे टू कलकत्ता टू कराची 20,000 सेलर्स खड़े हो जाते हैं और ब्रिटिश 100 से ऊपर नेवल शिप्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय द नेवी सोल्जर्स. और ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है. देन दे आस्क द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस रूलर्स लीडर्स. तब सरदार पटेल और नेहरू जी बात करते हैं, तब सेटलमेंट होता. और बस फरवरी एंड में somehow they manage the situation, and in March they decide that the cabinet mission plan will execute the government and an interim government will be formed in 2nd of September 1946 under the leadership of Jawaharlal Nehru. तो अब आप समझ सकते हैं कि आजादी में किसका कितना बड़ा योगदान है. सबका योगदान है, पर अफसोस कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी हमें कम से कम अब यह समझना होगा. दैट्स व्हाई इन 2018 व्हेन इट वाज 75th ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ आईएनए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी को उस आईएनए के जो भी जीवित सैनिक थे उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में, रिपब्लिक डे परेड में पूरे सम्मान के साथ हिस्सा लिया. यह फैक्ट मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताने का प्रयास किया कि कभी कभी आजादी के बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो बिल्कुल ग्लेरिंग हैं. इसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता हो, या जिसने हिस्ट्री तो छोड़िए जनरल नॉलेज भी पढ़ी हो तो उसे ना पता हो कि सितंबर 46 में कैबिनेट मिशन प्लान में गवर्नमेंट बनी थी और माउंटबेटन 30 जून 1948 तक वाइसरॉय रहे थे. और 2 साल तक उसके बाद भी भारत की आर्मी का चीफ भी ब्रिटिश रहे थे, जनरल रॉय ब्यूचर. फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है और वो प्योर इंडियन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है. और ये बात कहने वाला वो अखबार है जिसने हम पे हुकूमत की थी, उस देश का अखबार है. इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई भी नहीं है. तो ये एकदम एक एब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. अब यहीं से तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये देश 47 में बना, आजाद हुआ या अस्तित्व में आया. ये देश 1947 से एग्जिस्टेंस में नहीं आया. इस देश का एग्जिस्टेंस ऐसा भी नहीं कि एक व्यवस्था के तहत है. आज पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जितने कंट्री या नेशन की डेफिनेशन क्या है, द डेफिनेशन ऑफ द नेशन इज कि इट इज वन पीस ऑफ लैंड which is controlled by one political authority. One territory controlled by one political authority is considered as nation, which is called politico-territorial nation. पर भारत वैसा देश नहीं है. भारत में पॉलिटिकल टेरिटरी किसी के भी हाथ में हो, परंतु आपको पूरे देश से जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता. उदाहरण के लिए इस गुवाहाटी की धरती पर जब आप मां कामाख्या के मंदिर में जाकर श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो उतनी ही श्रद्धा आपकी वैष्णो देवी से भी जुड़ती है, उतनी ही श्रद्धा मुंबा देवी से भी जुड़ती है, उतने ही भारत के मध्य में विंध्यवासिनी जी से भी जुड़ती है, उतनी ही कोलकाता की काली मां से भी जुड़ती है, उतनी ही कन्याकुमारी से जुड़ती है, उतनी ही त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ती है. और इतना ही नहीं, उतना ही ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ती है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगलाज माता के साथ भी जुड़ जाती है.
That's how you get connected with the entire landscape of the nation, irrespective of कि वो किस political territory के अंडर में है। यही है राष्ट्र का मूल तत्व, यही है वो जो आपको इंस्पायर करता है, और यही वो भाव था जो इस धरती से उत्पन्न हुए दिव्य पुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं के माध्यम से, चाहे वह काव्य लिखे हों या नाट्य लिखे हों, सब में उन्होंने उसका वर्णन किया। यदि उन्होंने राम विजय का उल्लेख किया, कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया, नाट्य के रूप में राम विजय का उल्लेख किया, तो उन्होंने काव्य के रूप में कुरुक्षेत्र विजय का उल्लेख किया, भगवान कृष्ण के बारे में भी बात कही, और फिर उन्होंने एक प्रकार से निराकार भक्ति की भी बात कही। तो एक भिन्न भिन्न आयाम इस देश को कैसे जोड़ते हैं। और ये मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहता हूं। ये मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2016 को, देखिए नेशनलिज्म कैसे जोड़ता है, उन्होंने बलूचिस्तान का इशू उठाया था फ्रॉम द रेड फोर्ट। उस दिन शाम को मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट में था, और वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता अहमद मुस्सी खान was sitting, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत शहीद थे। Then the Baluch representative have started saying कि भाई in this entire region, means region around Pakistan, there are all the countries which are having one identity and one culture। उनका कहना था इसमें पूरे में एक, हर देश की एक संस्कृति है, एक इतिहास है। अफगानों से अफगानिस्तान है, कजाकों से कजाकिस्तान है, उज्बेकों से उज्बेकिस्तान है, बलूचों से बलूचिस्तान है। बट इफ देयर इज ए फेक कंट्री इन दिस एरिया विच इज हैविंग नो आइडेंटिटी एंड नो हिस्ट्री, दैट इज पाकिस्तान। अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था जनरल शफकत सईद, वो कहता है कि व्हाट यू आर सेइंग, आर यू नॉट पाकिस्तानी? देन अहमद मुस्सी खान, हु वाज फ्रॉम बलूचिस्तान, ही सेड, yes, I say I am Baluch, I am not Pakistani। तो वो पूछता है, अगर तू पाकिस्तानी नहीं है तो तेरी आइडेंटिटी क्या है? मतलब ही आस्क, if you're not Pakistani, then what is your identity? You know what the Baluch leader said? I again re-emphasize, I am Baluch, I am not Pakistani, and then he said a word in Hindi, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब आप देखिए, आप यहां पे बैठे हैं और कहां से कनेक्ट होता है। आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान हैज सेड, अब वो ही लॉस्ट हिज टेम्पर। अब वो इंग्लिश चैनल में शुद्ध हिंदी में आ गया और अबे तबे में बोलने लगा, और उसने कहा, अबे हिंगलाज माता क्यों, फिर भारत माता ही क्यों नहीं कह देता? और आपके लिए आश्चर्य होगा, फिर उस बलूच लीडर ने कहा कि हां, हम एक बार फिर कहते हैं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान है, और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत माता की जय। अब आप सोचिए, इसके बाद तो फिर उन दोनों में जो फाइटिंग शुरू हुई, तो हम लोग तो डिबेट से बाहर हो गए। बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कोई हिस्सा देश का कहीं भी चला जाए, भावनात्मक दृष्टि से आपके साथ पूरे देश से आप किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, वह मूल तत्व जो है वो है नेशनलिज्म। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे श्रीमंत शंकरदेव जी ने कुरुक्षेत्र के विषय में लिखा है, महाभारत की तमाम घटनाओं के बारे में लिखा है। महाभारत में सबसे प्रखर योद्धा जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को जीता, संपूर्ण विश्व को जीता, वो कौन थे? अर्जुन, पार्थ। और यहां तक कि जब भगवान कृष्ण ने गीता में अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि अमुक में मैं अमुक हूं, तो उन्होंने कहा कि पांडवों में मैं पार्थ हूं, यानी अर्जुन हूं, जो सबसे सक्षम, सबसे शक्तिशाली और युद्ध के प्रमुख नायक, और उनसे बड़ा योद्धा उस काल में नहीं हुआ। परंतु आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि अर्जुन आकर एक युद्ध में पराजित हुए थे, और पराजित ही नहीं हुए थे, उनके प्राण भी चले गए थे। वो कहाँ था? वो इसी पूर्वोत्तर की धरती पर था, जब मणिपुर में उन्हीं का पुत्र, उनकी एक पत्नी थी चित्रांगदा, उससे जो उनका पुत्र था बब्रुवाहन, उसका राज्य था। और महाभारत के बाद जब अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, और उस यज्ञ के घोड़े को लेकर अर्जुन को ही आगे किया गया, क्योंकि वही सबसे सक्षम योद्धा थे, और बब्रुवाहन ने उनको रोका और युद्ध के लिए ललकारा, और अर्जुन के साथ युद्ध में उसने अर्जुन का सर काट दिया, और जिस बाण से काटा उसका नाम था कामाख्या बाण।
अब आप कहेंगे कि फिर अर्जुन बचे कैसे? इसमें भी एक रोचक कहानी, और अब देखिए कैसे देश के साथ कनेक्ट होता है। जब पितामह भीष्म की मृत्यु हुई तो शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने तीर चलाया था, तो जो पितामह भीष्म के भाई थे वसु, उन्होंने श्राप दिया कि अर्जुन की को स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, चूंकि भीष्म के साथ पूर्णतः धर्म का पालन नहीं हुआ युद्ध में, इसलिए इनको सद्गति नहीं प्राप्त होगी। तो अर्जुन की एक और पत्नी थी उलूपी, जो नाग राजाओं की कन्या थी, उसे पता चल गया, तो वो भीष्म की मां यानी मां गंगा के पास गई और उसने कहा कि अर्जुन के लिए किसी भी प्रकार से निवारण होना चाहिए। तो तपस्या करने के बाद उसको गंगा जी ने बताया कि एक ही तरीका है, यदि पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु होगी तो वो इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी धरती पे आके पुत्र के हाथ उनकी मृत्यु हुई। फिर वही नाग राजाओं की कन्या उलूपी ने अपने पास एक चमत्कारिक मणि थी जो उनके हृदय पे रखकर उसको पुनः जीवित कर दिया। आप कल्पना करिए कहां पे कुरुक्षेत्र है, कहां कृष्ण की नगरी द्वारका है और कहां पर मणिपुर है। पूरा देश किस प्रकार से जुड़ा रहता है? वही जो अभी नंद कुमार जी ने कहा, लोक बियॉन्ड फोक, जिसको आप फोक स्टोरीज कहते हैं। हमारे यहां फोक जानते क्यों है? द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एंड अवर्स इज टोटली डिफरेंट। वेस्ट कहता है कि द ब्रांच ऑफ नॉलेज इज हिस्ट्री, इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच कैन डिपिक्ट यू एट एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो आज आदमी कहता है कि देन हाउ डज इट अफेक्ट्स टुडे? If Julius Caesar invaded England in 40 BC, now whether he invaded in 40 BC or 60 BC, how does it matters today? हमारे यहां कहते हैं इतिहास की परिभाषा ये नहीं है। हमारे यहां इतिहास की परिभाषा वो है कि पूर्व काल में हुई घटनाओं को जो ब्रांच ऑफ नॉलेज इस ढंग से प्रेजेंट करे कि वो वर्तमान समय में समाज में वैल्यूज और मूल्यों को बढ़ाने में सहायक हो सके, वह इतिहास है। इसीलिए हमारे यहां रामलीला का महत्व है, कृष्ण लीला का महत्व है। कृष्ण किस समय उत्पन्न हुए वो भी लिखा है, बाकायदा नक्षत्रों तक लिखा है। राम कब उत्पन्न हुए इसका उतना महत्व नहीं है कि किस समय उत्पन्न हुए, उन्होंने क्या किया और आज हम उसके साथ कैसे जी सकते हैं, इस चीज का अधिक महत्व है। ये हमारा राष्ट्र और समाज की एक सोच है। अब मैं यहां एक और बात भी बताना चाहता हूं। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। जैसे आपने देखा नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ एक अलग प्रकार का लगाव रखा है। 8 साल में लगभग 50 बार वो इस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आए। मैं चुनौती से कहता हूं, स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा होगा जिसने 50 बार इस क्षेत्र की दौरा किया हो। और फिर आपने देखा कि जो पिलर्स ऑफ कनेक्टिविटी हैं, फिर वो चाहें रोड हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पावर कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, ये 5 तो थे ही। इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी के लिए भी उन्होंने एक नई अवधारणा दी। एग्जाम्पल के लिए जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, आसाम हो, यहां तक कि बंगाल भी है, उसमें झारखंड और बिहार का क्षेत्र भी आता है। यहां नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, पानी बहुत गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए ये एक चुनौती है, दिस इज ए चैलेंज, बट हाउ टू फाइंड आउट अ वे इन दिस चैलेंज एंड गेट अ नोवेलिटी, एक नया प्रयोग उसमें से हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर बहुत बाढ़ आती है, नदियों के पाट चौड़े हैं, तो क्यों ना उसके अंदर ड्रेजिंग करके उनको और गहरा करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन, जल मार्ग से परिवहन की व्यवस्था की जाए। और इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की खासियत यह है कि रोड और रेल के मुकाबले 1/10 खर्चा आता है लगभग, और 1/10 एयर पोल्यूशन होता है। और आपने देखा था 2019 में पहली बार वाराणसी से लेके कोलकाता के पास हल्दिया तक ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, और यहां पूर्वोत्तर में अभी पिछले 6 मार्च 2022 को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पहली बार एक बड़ा कंटेनर 200 टन अनाज लेकर पटना से गुवाहाटी तक आया था। यानी ये एक नई सोच है कि यदि हमारे सामने यह समस्या थी तो उन्हीं नदियों के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपसे एक बिंदु और कहना चाहूंगा। देखिए, जब आसाम में हमारी सरकार बनी पहली बार 2016 में, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा
अरे असम में भाजपा चुनाव जीतकर सरकार बना ले गई, फिर त्रिपुरा में हमारी सरकार बनी 2018 में। तो लोगों ने माना कि भाई नॉर्थ ईस्ट में तो अब लगता है ये स्थापित हो गए। आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां त्रिपुरा की विजय के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि हम असम जीते और अब त्रिपुरा जीते, इसका मतलब पूर्वोत्तर में कमल खिल गया है और पूर्वोत्तर की दिशा तो बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए अब देश में सब कुछ शुभ ही शुभ होना चाहिए। परंतु मैं एक टीवी चैनल पे था और वहां तो जैसे हमारे जो लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट होते हैं, वैसे ये भी एक बड़ा पैराडॉक्स है, लेफ्ट कभी लिबरल होता ही नहीं है। यू नेम ए सिंगल कम्युनिस्ट कंट्री विच इज लिबरल, मगर ये तो वैसा ही है जैसे मैं कहूं कि आई एम ए डिवोशनल एथीस्ट, मैं एक मतलब नास्तिक भक्त हूं, ईश्वर भक्त हूं, ये वैसा ही कहना है जैसा लेफ्ट लिबरल। अब लेफ्ट लिबरल ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ये कैसे बोल दिया कि पूर्वोत्तर की दिशा बड़ी शुभ होती है, और पूर्वोत्तर की दिशा जैसा कि नंद कुमार जी कह रहे थे, ईशान कोण कहते हैं हमारे यहां पूर्वोत्तर को। क्या ये तो वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि पूर्वोत्तर की दिशा सबसे अच्छी है, तो ये तो एक प्रकार का अंधविश्वास है। प्रधानमंत्री जी को ने एक प्रकार से अंधविश्वास का प्रतिपादन किया जब उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की दिशा बहुत शुभ होती है। तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जहां तक सोच रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं। पूर्वोत्तर की दिशा शुभ होती है ये हमारे यहां ऐसे नहीं कहा गया है। आप सभी यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, ये बताइए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से चलती है? नॉर्थ टू साउथ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ चलती है, और सन की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को किस डायरेक्शन से आके क्रॉस करती है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो दोनों एनर्जीज का सबसे ज्यादा सुपर इंपोजिशन किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट में। द सुपर इंपोजिशन ऑफ द magnetic wave of earth and the magnetic wave of sun that conjoins, that the maximum intensity will be in northeast। इसलिए पूर्वोत्तर की दिशा शुभ होती है, इसीलिए देवताओं की आत्मा जिसमें निवास करती है वह हिमालय हमारे पूर्वोत्तर में ही है। और यह बात सिर्फ फिलॉसफिकल या साइंटिफिक नहीं है, आप यूं समझिए कि यहीं से शक्ति जागृत होती है। शक्ति के केंद्र मां कामाख्या का केंद्र यहां पर है। आप में से कभी किसी ने ध्यान दिया, जैसे मैंने ये तो बताया कि मां कामाख्या के भिन्न भिन्न स्वरूप देश के भिन्न भिन्न स्थानों में, कामाख्या शब्द का क्या अर्थ है और उसका क्या गहरा गहन रहस्य और धार्मिक अर्थ है? देखिए, काम शब्द जानते हैं कहां से आया है? कामना, डिजायर, इच्छा। सबसे पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख आता है कि जिस समय when the universe would have been created, आप कल्पना करिए, there are two things, a conscious and the material, जिसे कहते हैं सत और असत। सत का मतलब होता है which is perpetual, constant, never changing, absolute, और असत का अर्थ होता है which is changing, which can change, which can destroy, which can vanish। अब उनका कहना है कि ये सबसे पहले काम शब्द कहां आया है? वेदों में एक श्लोक है, कामस तदग्रे समवर्तताधि तमसो रेता मनसो रेता प्रथमम यदासीत सतो बंधुम असत निर्विंदन हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। इसका अर्थ हुआ, अब उत्पत्ति हुई काम की, कामना की, जो मन का अव्यक्त बीज है। जैसा अभी नंद कुमार जी का, मन का कोई इंग्लिश में सिनोनिम नहीं है। माइंड इज नॉट मन, मन का अव्यक्त बीज है, विच इज द नॉन मैनिफेस्टेशन बेसिक सब्टल कॉज ऑफ मन, जो सत और असत के बीच का कनेक्टिंग पॉइंट है। और उसे ही हृदय में धारण करके ईश्वर रूपी कवि ने संसार रूपी कविता की रचना की। द गॉड हैज क्रिएटेड द ब्यूटिफुल पोएट्री लाइक दिस यूनिवर्स। वहां से शुरू होता, अर्थात संपूर्ण संसार का अस्तित्व जहां से शुरू होता है वह कामना है। और आपके भी जीवन के जो भी बात, आप कोई कार्य सोचिए, एनी वर्क यू हैव डन इन योर लाइफ, from where it has started, first when you have thought about this and the desire emerge in your mind that I have to do this। तो इसलिए मां कामाख्या का अर्थ
प्रकृति के उस सबसे पहले तत्व और सबसे पहली शक्ति से है जिसके द्वारा इस संसार की रचना होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग यदि मां के उस रूप की धरती पर हैं तो निश्चित रूप से आप परम सौभाग्यशाली हैं। अब देखिए, जब हम पूरे देश के साथ कनेक्ट होने की बात करते हैं तो इस देश के साथ एक अलग प्रकार का एलिमेंट है। हमने नेशनलिज्म के बारे में समझा। नाउ अब एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एलिगेशन लगता है सेक्युलरिज्म के बारे में। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि सेक्युलर वर्ल्ड का मीनिंग आपको पता है? जाके अगर ओरिजिनल मीनिंग डिक्शनरी में सर्च करिएगा तो सेक्युलर वर्ल्ड का ओरिजिनल मीनिंग होता था मंडेन, रिलेटेड टू वर्ल्डली अफेयर्स इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म। मूल अर्थ यह था, सेकुलर शब्द का मूल अर्थ था कि आध्यात्म विरोधी भौतिकवादी। अब बाद में यह कहने का प्रयास करिए जाने लगा जैसे वो पंथ निरपेक्षता की बात कहते हैं, परंतु पहली बात, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो प्रयोग किया जाता है यह इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जैसा नंद कुमार जी ने कहा, धर्म शब्द का कोई सिनोनिम अंग्रेजी में नहीं है। यू नो व्हाई? धर्म शब्द संस्कृत के ध धातु से बना है, उसी से धारण शब्द बनता है। हिंदी में धारण शब्द होता है ना, मीन्स यू कैन होल्ड एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड धारण। उसी से धरती शब्द बनता है जो सब कुछ होल्ड करती है। तो धर्म मीन्स दोज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच होल्ड्स द एंटायर नेचर और द एंटायर यूनिवर्स। इसीलिए धर्म इज लाइक धरती एंड रिलीजन इज लाइक द वेज और द रोड्स मेड ऑन दिस अर्थ। इसीलिए हमारे यहां रिलीजन को पंथ भी कहते हैं। तो पंथ की पहचान होती है, धरती की पहचान नहीं होती है। धरती सारे पंथों को धारण करती है। फिर भी हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कह दिया गया। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ध्यान दिया है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की जो चेयर है उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। संपूर्ण लोकसभा धर्म के चक्र को चलाने के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो क्या है? धम्म चक्र है। यानी वो भी धर्म का प्रतीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जयः। जब सब तरफ धर्म है तो हम धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? यह देश कभी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। यह धर्म प्राण देश है। यह देश पंथ निरपेक्ष है। मीन्स इट इज न्यूट्रल टू योर वे ऑफ वर्शिप। और हम कितने पंथ निरपेक्ष हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इफ आई आस्क यू नेम ए सिंगल कंट्री ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इन विच ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर देयर, वो सिर्फ भारत है। ज़ोरोस्ट्रियंस और पारसी आज दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और अपनी मातृभूमि ईरान से समाप्त हो गए, भारत में हैं। और भारत में है ही नहीं, पूरे क्षमता प्रतिभा के साथ हैं। ये बताइए, कोविड वैक्सीन बनाई थी तो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के जो ओनर थे कौन थे? आधार पूनावाला, पारसी। दो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, सबसे देश के पहले बड़े उद्योगपति जीआरडी टाटा, पारसी। पहला न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा, पारसी। फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, पारसी। इतना सम्मान, इतनी छोटी सी कम्युनिटी जो भारत के पॉपुलेशन का 0.1%। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, जब इजराइल बना तो यहूदियों के ऊपर पूरी दुनिया में किस प्रकार के अत्याचार हुए उसके ऊपर कंपाइलेशन हुआ ज्यूज की हिस्ट्री को लेकर। और कहा गया दुनिया के सारे देशों के ज्यूज अपनी अपनी आप बीती लिखें कि उनके साथ क्या क्या परसिक्यूशन हुआ। और सिर्फ भारत एक देश था जहां के यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बीइंग ज्यूज। और अगर आपसे पूछें कि इस्लाम में जितने फिरके हैं, यदि दुनिया में, सारे धर्म तो भारत में, दुनिया में कोई एक देश है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई 57 मुस्लिम देशों में से मुस्लिम देश नहीं है, सिर्फ भारत है जहां सारे फिरके पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी रिसेंट कोट कर रहा हूं, एक बहुत बड़े पत्रकार हुए मार्क टेली।
मार्क टेली जो बीबीसी के संवाददाता थे पूरे साउथ ईस्ट एशिया के, ही वॉज बेस्ड इन दिल्ली एंड ही रिमेन इन इंडिया फॉर 26 ईयर्स। और उन्होंने अभी सितंबर 2019 में द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा, उसमें जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। भारत के मुस्लिम सबसे भाग्यशाली हैं। क्यों? उन्होंने उसका रीजन लिखा कि मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा। एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके ठीक सामने तबलीगी जमात का ऑफिस, और दोनों का थॉट प्रोसेस एकदम कंट्रास्ट में था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर दिया होता। भारत के मुस्लिम इसलिए लकी हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। 25 साल पहले 50 साल पहले कहां के थे हम? जहां सिचुएटेड हैं, हम जहां विराजमान हैं, वहीं हमारी एथेंटिसिटी के लिए वो पर्याप्त है कि हम यहां पर हैं। हमसे कागज नहीं मांगे जाने चाहिए। यही स्टैंड था ना, ये था सेकुलरिज्म। और आपको याद हो श्री राम जन्मभूमि का जो केस चल रहा था, आपको पता है उसमें वन ऑफ द रेस्पोंडेंट वॉज श्री राम लला विराजमान। उसमें एक मुद्दई खुद श्री राम लला विराजमान थे, वो अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। और वही लोग जो कागज अपने लिए दिखाने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि नहीं, रामलला जहां विराजमान है वो कागज पे तय होगा। और कागज भी अभी का नहीं, 500 साल पुराना भी कागज दिखाना पड़ेगा, अरबी फारसी वाला कागज भी दिखाना पड़ेगा, अंग्रेजी वाला कागज भी दिखाना पड़ेगा। ये था सेकुलरिज्म। और अगर कहा जाए कि सारे कागज हैं फिर भी वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं तो वो नहीं बनना चाहिए, ये क्या है? ये है कम्युनलिज्म। मतलब आप देखिए कितना विचित्र तर्क है। जो लोग हाथ उठा उठा कर यह बात कहते थे कि भगवान राम के संदर्भ में तो 500 साल पुराने कागज सारे चाहिए और हमारे खुद के संदर्भ में एक भी कागज नहीं चाहिए, तो इसे देखकर तो मुझे वो पुराने गीत की पंक्ति याद आती थी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। अब इतना ही नहीं, यहीं पर उसी सीए को लेकर जब तरुण गोगोई जी की सरकार ने अप्रैल 2014 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखा है, उन्होंने बहुत क्लियर कट लिखा था उसमें वर्ड कि सिर्फ हिंदू बौद्ध। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था। यानी जो आपने किया, मनमोहन सिंह जी इसी असम से सांसद थे, उन्होंने जब विपक्ष में थे तब लाल कृष्ण आडवाणी जी जो होम मिनिस्टर थे, उनसे जो रिक्वेस्ट करते हुए सदन में बोला वो वही बोला एग्जैक्टली। और जब वहां पे बात करें साहब ये कम्युनलिज्म हो गया। तो ये जो कम्युनल सेकुलर की जो परिभाषा है, इस परिभाषा ने इस राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा अहित किया। अब अंतर देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या कहा कि मुद्रा योजना में जो छोटा लोन देना है ना, हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक SC ST और एक महिला को लोन अवश्य देना पड़ेगा। और मुद्रा लोन लेने वाले 32 करोड़ लोगों में 50% से अधिक महिलाएं। तो हमारी सोच क्या है कि फर्स्ट राइट किसका है? जो सबसे कमजोर है, जो फाइनेंशियल स्टेटस में सबसे पीछे खड़ा है, उनका कहना है कि फर्स्ट रोल किसका है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। यह सोच का अंतर कम्युनलिज्म है। मैं इस पे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं 2010 की बात है, 2008 की बात है, मैं यूएस गया था ACYPL प्रोग्राम में, अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स प्रोग्राम में। तो वहां पे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, तो उसकी जो चीफ थी लेडी, उन्होंने हम लोग से कहा कि भाई यू आर कंसीडर्ड एज अ राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी। तब मैंने उनको कोट करके बताया, मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला और हम इसको अपोज करते हैं कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, देन वी बिकम कम्युनल। Then I reminded him when IMDT Act was quashed in 2006, सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया और जब हमने कहा कि वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, वी वर कंसीडर्ड एज कम्युनल। इफ यूपीए गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा कि ऑल इनफिल्ट्रेटर्स शुड बी गिवन सिटीजनशिप, देन आई सेड व्हेन वी अपोज वी बिकम कम्युनल।
तो उनको ये पता ही नहीं था। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि इसको चेक करो, और जब तक हम लोगों की मीटिंग खत्म हुई, सौभाग्य से उनके सेक्रेटरी ने कहा यस मैडम, जो बात कह रहे हैं ये सही है। अब बताइए कैसा प्रोजेक्शन वहां पे किया हुआ है और वास्तविकता कितनी है। फिर हमने कहा, जहां तक हमारी बात है, मैंने कहा वी आर द पार्टी। जब हम पहली बार पावर में आए 98 से 2004, तब इंडिया आईटी की सुपर पावर बना। तब तक मोदी जी की सरकार तो नहीं आई थी। फिर हमने कहा ये बताइए, सबसे पहले ईमेल यूज करने वाली पार्टी कौन बनी? हम। सबसे पहले वेबसाइट बनाने वाली पार्टी हम थे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने वाली पार्टी हम थे। अब अगर आप मोदी जी का एरा देख लें तो सबसे डिजिटल इंडिया लाने वाली पार्टी हम। कम्युनिकेशन में याद करिए, चुनाव प्रचार के दौरान ऑडियो ब्रिज, 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये हमने शुरू किया। जनधन जैम योजना, आधार एंड मोबाइल, ये हमने शुरू की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने शुरू किया। यानी जितने भी साइंटिफिक एडवांसमेंट के प्रोसेस हैं वो सारे के सारे हमने शुरू किए। डिफेंस प्रोडक्शन हमने शुरू किया। आप याद करिए 2019 के इलेक्शन के दौरान, आपको याद होगा एक बार एक मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी बोलने जा रहे हैं कोई राष्ट्र के नाम संदेश 12 बजे दिन में। सब लोग घबरा गए थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, कोई और नोट तो नहीं बंद होने वाला है। मगर आप में से कईयों को याद है प्रधानमंत्री जी ने उस दिन क्या बोला था? उन्होंने बताया था, आके घोषणा की थी कि अर्थ की जो लो लाइंग ऑर्बिट होती है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो हम उसे सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी पा चुके हैं, और ये पाने वाले हम दुनिया के सिर्फ चौथे देश हैं। और इसका प्रभाव जानते क्या होता है? आपके ऊपर यदि कोई न्यूक्लियर वेपन छोड़ा जाता है किसी मिसाइल सिस्टम से, तो वो बहुत ऊपर जाता है, स्पेस में जाता है, और उसके बाद वो अर्थ की लो ऑर्बिट में अंदर आता है। अगर आपके पास लो ऑर्बिट में डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी है तो आप उसको वहीं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इससे पहले कि वो धरती के एनवायरनमेंट में एंटर करे। ये करने वाले हम पहले देश थे। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड, एडवांसमेंट ओरिएंटेड, सेकेंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने वाले हम देश थे, और हमें वो प्रोजेक्ट करके रखा जाता है जैसे कि कोई हम सबसे ज्यादा फंडामेंटलिस्ट बैकवर्ड लुकिंग थे। ऑन द लाइटर नोट हम एक और बात कहते हैं, महंगाई को लेकर आजकल बहुत बात होती है। जो लोग इकोनॉमी के अच्छे जानकार हैं, दे मस्ट बी रिमेंबरिंग, एक दौर था जब भारत की रेट ऑफ ग्रोथ कितनी थी? 2% के आसपास रहती थी इन द एंटायर डिकेड ऑफ 1970s एंड 80s। और भारत का मजाक उड़ाया जाता था, दिस इज अ हिंदू ग्रोथ रेट। मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कहता भारत इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, 2% से ऊपर कभी ग्रोथ रेट होगी नहीं, बिकॉज इट इज कॉल्ड दी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और आप देखिए अब जब से बीजेपी पावर में आई, मैं अटल जी के जमाने से कह रहा हूं, उस जमाने में हम 8.5% तक ग्रोथ रेट ले गए थे, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4%, 4.5% पे हमने छोड़ा था। याद करिए उस जमाने में 70s 80s में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहता था। आज इस समय जबकि कोविड के इतने बुरे दौर के बाद रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? 7%। रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है? 8.5%। केवल कोविड के वो एक साल छोड़ दें, 8-10 महीने, अन्यथा हमेशा हमने रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ऊपर रखी है। और कोविड से पहले तो 3.5% पे आ गई थी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और रेट ऑफ ग्रोथ 8.5-9% थी। बस यही अंतर है। जो लोग ये कहते हैं उन्हें हिंदू समझ में आता, हिंदुत्व समझ में नहीं आता है, तो उन्हें मैं समझा देना चाहता हूं, जब तक सिर्फ हिंदू समझने वालों की हिंदू ग्रोथ रेट थी तो हमेशा ग्रोथ रेट से कहीं ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहती थी। जब से हिंदुत्व समझने वालों की सरकार आई है तब से हमेशा ग्रोथ रेट से बहुत नीचे रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है। यह इकोनॉमी का एक अंतर है कि जो कि उन्हें शायद समझ में नहीं आता होगा। और मैं यहां के लिए यह भी कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख अभी नंद कुमार जी ने किया था, मैं एक घटना और बता दूं आपको, ज्यादा लंबा समय न लेते हुए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लगाने का निर्णय हुआ इंडिया गेट पे, तो एक डिबेट में हम थे, और एक प्रसिद्ध एंकर जो आसाम के ही हैं, हिस्ट्री के ऊपर बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई लचित बरफुकन के बारे में भारत की नेशनल हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, जो इतने बड़े रूलर थे। और तो जानते हैं, एक जो अब जो लेफ्ट लिबरल, जो मैंने कहा ना एक कॉन्ट्रडिक्टरी जो सेंटेंस है,
तो उसकी जो प्रतिनिधि महिला बैठी थी उन्होंने कहा नहीं नहीं, वी डू नॉट डी रिकॉग्नाइज, वी एक्सेप्ट Lachit Borphukan's and Ahom King's history because this is a part of the regional history of India. चोल एम्पायर की बात, दिस इज अ पार्ट ऑफ द रीजनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के इतिहास में बैटल ऑफ सराय घाट सन 1672 में मुगलों को जिस ढंग से हराने में सफलता हासिल की, और वो समय जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है? आपको पता है मुगल वर्ड अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी में मुगल वर्ड है ना, उसका मतलब क्या होता? बड़ा, ग्रैंड, शानदार। तो उस समय चूंकि जो मुगल एम्पायर था, दैट वाज द रिचेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड, और वो अपनी पीक पे था औरंगजेब के जमाने में 1657 से 1707, और यही वो दौर है जब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी को डिफीट किया और उसे इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। और वो क्या है? रीजनल हिस्ट्री। गंगा के मैदान के आगे नहीं बढ़ पाई, ब्रह्मपुत्र के और बराक वैली के मैदान में आ नहीं पाए, जिस शक्ति ने रोक दिया वो रीजनल हिस्ट्री है, जिसके बारे में एक बहुत बड़े मुस्लिम सूफी फकीर हुए हैं जिनका नाम है हजरत वलीउल्लाह। थोड़ा सा इसमें उर्दू के वर्ड हैं तो मैं आपको उसमें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का भी प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, मींस व्हेन दैट कारवां स्टार्टेड फ्रॉम देयर, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, द फ्लैग हैज बीन देयर फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू बहरीन इट नॉट स्टॉप्ड एनीवेयर, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका, नो मैन वॉज हैविंग ऑडेसिटी टू स्टॉप दैट। फिर आगे कहता है किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, हु हैज क्रॉस्ड ऑल द 7 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, एंड दैट जर्नी स्टॉप्ड आफ्टर द बैंक ऑफ गंगा। तो मैंने कहा जिसने इतना बड़ा रोक दिया वो है रीजनल हिस्ट्री ऑफ असम। चोल राजाओं को पढ़िए जिनका की इंपैक्ट इंडोनेशिया, बाली, मलेशिया तक दिखाई पड़ता है, दैट इज द रीजनल हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को टर्की तक खदेड़ दिया था, दैट इज द रीजनल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। छत्रपति शिवाजी इज अ रीजनल हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। आप में से शायद कुछ ने सुना हो कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़ा सेंट्रल एशिया, तिब्बत का इलाका जीता, और कहा जाता है कि उनका राज कैस्पियन सी तक था। दैट इज रीजनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंड यू नो व्हाट इज द नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर में एक आखिरी एम्पायर था जिसका नाम था शाह आलम। शाह आलम एक उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब होता है द एम्परर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। और उसकी हैसियत जानते कितनी थी? दिल्ली में लाल किले का नाम तो सुना होगा, और पालम का भी नाम सुना है ना, जहां एयरपोर्ट है। उसके बारे में कहावत थी, सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम। एंड दिस वॉज द नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड की जब हमें बात करनी है तो हमें इन चीजों को भी समझना होगा। कितना गौरवशाली हमारा इतिहास है उस सबको रीजनल कह के, और रीजनल कहने के दो और बातें रहती हैं, सिर्फ इतना नहीं कि उसको डीमीन करना है, उसको नेशनल स्टीम से अलग करना है, आपस में एक दूसरे से लड़ाने की बात कहनी है। एक पॉइंट और आप लोगों के ध्यान में डाल दूं जिसके विषय में अभी बोला भी गया, लैंग्वेज। बहुत सी आजकल आपने देखा ऐसी कई घटनाएं हुई। एक झारखंड में घटना हुई जिसमें एक बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, तो कहीं किसी को झूठा नाम बताकर वो किया, किसी को हत्या करके मारने की धमकी दी। तो ये जानते हैं कहां से आता है? कभी कभी हम एक फ्रेज सुनते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना? पर ये तो इंग्लिश में है। इफ इट इज आस्क्ड कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, तो कहा जाता है जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। न जंग हिंदी का शब्द है किसी भारतीय भाषा का, न इश्क किसी भारतीय भाषा का शब्द है, न जायज किसी भारतीय भाषा का शब्द। आई चैलेंज किसी भारतीय भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में, चाहे आपकी असमिया हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, कोई हो, गुजराती, मराठी में कोई ऐसा कहावत है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है? नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं हमारे यहां। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। कई बार आप जब लैंग्वेज में चले जाते हैं, अगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर आतंकवाद भी जायज है।
और फिर पेट्रोल छिड़कना भी जायज है। इस ढंग का विचार कई बार भाषा धीरे धीरे हमारे दिमाग में भर देती है और हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अक्सर आप लोग संस्कृत में जब पूजा पाठ करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुना होगा, ललिता सहस्त्र नाम सुना होगा, हनुमत सहस्त्र नाम सुना होगा, यानी 1000 वर्ड। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक लैंग्वेज बताइए जिसमें एक वर्ड के 1000 पर्यायवाची हो और उसमें से एक भी दूसरी भाषा से ना लिया गया हो। इतनी समृद्ध भाषा है, हमारी भाषाओं में इतनी समृद्धि, मगर उसके बावजूद कॉलोनियली क्या बता रही, ये सब भाषाएं बेकार थी, इन भाषाओं में कुछ भी खास नहीं था। इसलिए भाषा के तत्व को भी समझिए। और फाइनली एक और बात कहता हूं, सिंस आई एम इन यूनिवर्सिटी, तो आई वुड लाइक टू से सब कुछ हमारा प्राचीन काल में नहीं है, मॉडर्न साइंस में मैं पूछना चाहता हूं। सर सीवी रमन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, तो हम सब ने यही पढ़ा है ना कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स, यही पढ़ा है ना। बट इट इज ट्रूथ? नो, इट्स हाफ ट्रूथ। He was not just the first Indian, he was the first non-European, first non-white to get Nobel Prize in any branch of fundamental science. मार्कोनी ने वायरलेस का सिग्नल भेजा था, जेसी बोस ने तो पहले बना लिया था। चांस की बात है हम पेटेंट नहीं कर पाए। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, जगदीश चंद्र बोस ने भी तो उसी समय में बना ली थी, हम पेटेंट नहीं कर पाए। अगर राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया 1904 और 5 में, तो 1895 में डॉक्टर शिवकर बापूजी तलपदे ने बाकायदा चौपाटी बीच के ऊपर उड़ा के दिखाया था। उस समय उसको माना गया जादू टोना है। बाकी बात छोड़िए, ये बताइए जीन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुना है? सबसे पहले जीन का जो स्ट्रक्चर बना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसको किसने बनाया? वॉटसन एंड क्रिक। और उनके साथ एसोसिएटेड इंडियन साइंटिस्ट कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला? हरगोविंद खुराना। तो जीन्स में भी हम हैं। अब आप ये आइए, आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट का चीफ आज कौन है? इंडियन, सत्य नडेला। गूगल का चीफ सुंदर पिचाई, पेप्सी की चीफ इंदिरा नोई। ये बताइए मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है अजय बंगा। ये सिटी बैंक के चीफ इंडियन रह चुके हैं। इसी में मैंने मजाक में पहली बार बोला था, एक बार पाकिस्तान वाले से बहस हो रही थी तो हमने कहा था हमारे यहाँ इन के चीफ हैं, और आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ है। 75 साल में हम कहां से कहां पहुंचे। और फाइनली एक और बात बताता हूं, 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज अब तक क्या हुई है? वो हुई जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में हिग्स बोसॉन खोजा गया, जिसको नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहा गया। इसका साइंटिफिक नाम है हिग्स बोसॉन। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 साइंटिस्टों के नाम पे बना है जिन्होंने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था। एक है मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड, उनके नाम से हिग्स है, और बोसॉन शब्द भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे है, जिन्होंने इसकी सबसे पहले अवधारणा दी थी 50-60 साल पहले। तो पिछले 100 सालों से लेके 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज में हमारे सिग्नेचर दिख रहे हैं। यूथ को क्या करना है? अब आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़िए, रिसर्च में जाइए, कंपोजिट मटेरियल, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सारी चीजों में रिसर्च करिए, तब जाके आप आगे उस दिशा में पहुंच पाएंगे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृतकाल समाप्त होते होते भारत को उस अवस्था में पहुंचाना है। इसलिए सिर्फ ये समझिए कि हम नॉलेज के रिजर्वायर पहले भी थे और नॉलेज के रिजर्वायर आज भी हैं। हमारे अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, हमें बस समझना यह है कि कॉलोनियल माइंडसेट से एक बार हम बाहर आ जाएंगे तो हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो उभर कर सामने आएगी। और आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं, पर अभी आज़ादी का जो मिशन है उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। वो अभी हमारा कुछ हद तक अधूरा है। इसलिए मैं ये पंक्ति कहकर विषय को समाप्त करने का प्रयास करता हूं, जो अटल जी ने कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब भारत का गौरव पुनः लौटाएंगे और गिलगित से, गिलगित कहाँ है? पीओके में, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे।
गारो पर्वत इधर है, पूरा देश एक होकर उन्होंने कहा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी के तट के ऊपर 1930 में संकल्प लिया गया था पूर्ण स्वराज्य का। तो 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो सपनों को सच साबित करने को कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। और फाइनली, वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑन अर्थ, ये भी हाफ ट्रूथ है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है, इसलिए हमारा एक गौरवशाली भूतकाल है और बहुत ही स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि हमें ज्ञान में भी उच्चतर स्तर पे पहुंचना है और समृद्धि में भी उच्चतर स्तर पे पहुंचना है, तो हमें क्या करना है? मां लक्ष्मी की भी कृपा चाहिए और मां सरस्वती की भी कृपा चाहिए। पर मां सरस्वती भी कमल पे विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पे विराजती हैं। तो इसलिए जितना हम इसका ध्यान रखेंगे, तो ये आप तय मानिए कि नियति ने आप भविष्य तय कर दिया है। एक बिंदु कह दूं जाते जाते, क्योंकि युवा पीढ़ी है और 21वीं सेंचुरी की बात होती है। ये बताइए, 1 जनवरी 1901 को इस देश में जब सूरज उगा तो इस पूरे देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 को किसकी सरकार थी पूरे देश में? कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। और 2001 में ही मोदी जी का पदार्पण हुआ था राजनीति में। अगला दशक आते आते 2010 के दशक में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार थी। इसका अर्थ क्या हुआ? 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है। तो मैं फिर ये कहते हुए कि बस ईशान कोण से शुरू करिए, सब शुभता के साथ हम विश्व में उठकर खड़े होंगे, किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को झुकाने के लिए नहीं, विश्व को प्रेरणा देने के लिए। इसलिए हम सुपर पावर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, हम जगत गुरु बनने के लिए खड़े हो रहे हैं। बिकॉज द पावर डोमिनेट्स एंड गुरु मोटिवेट्स। So India is all set to rise on the global scenario in this 25 years which are coming, to motivate the world, not to dominate the world. और एक पंक्ति हिंदुत्व पे ना बोले तो लगता बात पूरी नहीं हुई। तो एक पंक्ति और कह दूं, अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी अंतिम छंद में हमारी सारी फिलॉसफी आ जाती है कि अगर हम शक्तिशाली होंगे, जो होना तय है, और संपूर्ण विश्व में आगे बढ़ेंगे, तो हम दुनिया को क्या देंगे? उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद।